Hello everyone, I Rachna Agarwal welcome you all in today's class. And as you all know in Agarwal classes रेनबो का ये बुक चल रहा है क्लास 12 RBSc English compulsory book first. And as we were at our chapter number 3 third thoughts, and it is written by E.V. Lucas, and this is the last episode of that chapter. Let us do it. In our till previous part we have done till himself. Today we'll start from here. As you all know that in this story it has shown the selfishness and human weakness for money, and in this story the narrator has exposed at how money is involved in humans sentiments and his ideas. Man is basically selfish and materialistic, and for the sake of money he can consider and reconsider and even change his noble and ideal thoughts in his everyday social behavior. So let us do this part. While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. Why should I? So my thoughts strained directly. I had for the first time in my life brought off such financial coup, spoil it by giving a large part of the profit away. Was not that flying in the face of the goddess of business, whoever she may be? Was it not asking her to disregard me a day or so after we had at last got on terms? There is no fury like a woman scorned. It would probably be the end of me. City magnates are successful probably just because they don't do foolish impulsive things. Impulse is the negation of magnetism. If I am able to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continued, I must control my feelings. No, 5 point is absurd. A deucer of 1 pound will meet the case. It will be nothing to me, or at any rate nothing serious, but a gift of quail and manna from a clear sky to the dealer, without however doing any harm. A pound will be ample, accompanied by a brief note. So let us understand this topic, this paragraph. What does this paragraph means? In this paragraph, one hard word that has come, I would like to mention that financial coup. Financial coup is a word, I hope I must tell them. Here it means एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसके लिए ये टर्म यूज हुआ है फाइनेंशियल कू. एंड दूसर इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट और उपहार, आप जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट या गिफ्ट आप जिसको कह सकते हैं. देन क्वेल एक वर्ड यूज हुआ है. क्वेल इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड. जैसे हिंदी में आपने मुहावरे भी पढ़े होंगे, अंधे की हाथ बटेर लगना. बटेर इज अ काइंड ऑफ बर्ड. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ. इस पैराग्राफ में नरेटर जो है वो बता रहे हैं कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो कपड़े पहन रहे थे तो वो फिर से उसी डीलर के बारे में सोच रहे थे जिससे उन्होंने सामान खरीदा था, और उनके थॉट्स माइंड में चल ही रहे थे कि इतना बड़ा बिजनेस जो उन्होंने किया है, जो प्रॉफिट आज उन्होंने ट्रांजैक्शन में किया है, लाइफ में पहली बार जो किया है, इतना फाइनेंशियल क्रूज उन्होंने इतना बड़ा जो सौदा किया है, क्या वो उसको आज ऐसे ही जाने दे? ऐसे अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता मैं? ऐसा करना, वॉज इट नॉट आस्किंग फॉर अ वुमेन्स गॉड? बिजनेस की जो गॉडेस होती है, गॉडेस लक्ष्मी, उसका अपमान होगा. ये तो बिजनेस रूल्स के अगेंस्ट होगा. तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. नरेटर ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ये मतलब ऐसा नहीं था कि मैं गॉडेस देवी जो है, धन की जो देवी लक्ष्मी, उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ, और इट्स बेटर कि मैं धन की देवी से समझौता कर लूँ और वही ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि एक वुमेन्स कॉन्ड, अगर किसी स्त्री, तिरस्कृत स्त्री से बढ़ करके क्रोधित जीव कोई नहीं होता है, और ऐसा करना शायद मेरे लिए बहुत बुरा हो सकता है. मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है, एंड ऑफ मी भी हो सकता है, मेरा अंत भी हो सकता है. और यही वो मान रहे हैं कि सिटी में रहने वाले जो बड़े धनी मानी जो लोग होते हैं, सिटी मैग्नेट्स जो होते हैं, बड़े शहर में रहने वाले धनी मानी व्यक्ति जो होते हैं, शायद वो इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं कि वो इस तरीके की जो है फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स को नहीं करते हैं, मूर्खतापूर्ण और आवेगी चीज़ें नहीं करते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं. आवेग चुंबकत्व के ठीक उल्टा वाला काम होता है. अगर मुझे आर्ट का ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने किया है और मैं उससे एक महत्वपूर्ण अगर व्यक्ति बनना है, तो ऐसे उसके थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, तो आई शुड लर्न, आई शुड कंट्रोल माई फीलिंग्स. मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा.
एंड इस तरीके से मुझे अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। एंड नो 5 पाउंड्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी, इट वुड बी एब्सर्ड, एक बेतुकी बात होगी इस मैटर के अंदर। इट्स बेटर कि मैं चलो अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो 1 पाउंड ही मैं उसको दे देता हूँ। इट वुड ऑल्सो बी अ गुड कॉज, इट विल बी ऑल्सो अ गुड थिंग, इट विल बी नथिंग टू मी, मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 पाउंड में दे दूंगा तो। और कुछ भी हो, कोई विशेष गंभीर बात नहीं है, नथिंग सीरियस। बट हाँ, उस बिजनेस, उस डीलर में, उसके लिए जिससे मैंने सामान खरीदा है, उस डीलर के लिए शायद बटेर लगने हाथ वाली बात होगी कि आसमान से उसके लिए सौभाग्य बरस रहा होगा फ्रॉम अ क्लियर स्काई। तो हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म, उसको बिना किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए उसको उपहार भेजना उस डीलर के लिए शायद, जिससे मैंने ये पेंटिंग खरीदी थी, फ़ायदे की बात हो सकती है उस डीलर के लिए। तो एक जो है पॉन्ड विल बी एम्पल, उसने डिसाइड किया कि 1 पाउंड ही मैं उसको दे देता हूँ, अकम्पेन्ड बाय अ ब्रीफ नोट, एक छोटी सी नोट उसने लिखा, और वो 1 पाउंड तक अब उसका थॉट आ चुका है, जो उसको प्रॉफिट अब शेयर करना है उस बिजनेसमैन के साथ में, उस डीलर के साथ में। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट अस डू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present, because it was an old and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of thing, good luck should be shared. I had the envelope in my pocket containing the note and the check when I reached the club for lunch, and that afternoon I played bridge so disastrously that I was glad that I had not posted it. After all, so my thoughts ran as I destroyed the envelope and contents. Such bargains are all part of the game. Buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and customer. The dealer asks as much as he thinks he can extort, and the customer, having paid it, is under no obligation whatever to the dealer. The incident is closed. तो इस तरीके से नरेटर का जो दोस्त है वो एक नोट लिखता है और वो ये सोचता है कि 1 पाउंड उसको मैं भेज देता हूँ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड उसके बाद में वो क्या सोच रहे हैं। जो नोट उन्होंने लिखा था, उस नोट के अंदर उन्होंने लिखा है द नोट वॉज टू द इफेक्ट, उन्होंने उस पर्ची के अंदर लिखी बातों के अंदर यही बात लिखा है कि उस लाभ साथ मैंने उस पेंटिंग को बेच दिया है कुछ प्रॉफिट के साथ में, और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको कुछ प्रॉफिट के लिए उससे आपके लिए एक प्रेजेंट ले सकूं, एक उपहार जो है वो मैं आपको भेज सकूं, क्योंकि ये मेरे लंबे अरसे से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा मेरे साथ हो, अच्छा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो। तो मैं वही कर रहा हूँ कि कुछ विचित्र सी विश्वास था कि व्यक्ति को कुछ ऐसा ही करना चाहिए, अच्छे भाग्य को दूसरे के साथ में बांटना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूँ। मेरा गुड लक जो हुआ है वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से आपको मैं कुछ उसके बदले एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं आपको थैंक्स के साथ में भेज रहा हूँ। और जब उसने ऐसा कोई एक नोट लिखा और एक 1 पाउंड उसने सोच लिया था कि चेक उसको भेजेगा, तो वो चेक और लिफाफा जो उसकी पॉकेट में ही था, और उसके बाद में वो लंच करने के लिए जब अपना कैंटीन या क्लब इसके अंदर मेंशन किया है वहाँ पहुँचा, और दोस्तों के साथ में जब वो दोपहर के अंदर ब्रिज खेलने लगा। ब्रिज इज़ अ काइंड ऑफ अ गेम जो कार्ड्स या ताश के साथ में ताश से खेला जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रसली मीन्स बहुत ज़्यादा अनर्थकारी ढंग से, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने वो गेम खेला, और वो गेम खेलते खेलते उनको ये लेसन मिला कि ये सोच करके कि आई वॉज ग्लैड, और मुझे ये समझ में आया कि मैं हैप्पी था कि मैंने वो जो नोट लिखा था वो नोट और वो चेक जो है पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि फाइनली मेरे माइंड में ऐसे विचार चल रहे थे। और जब एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार मेरे विचार ऐसे चल ही रहे थे कि नरेटर के जो फ्रेंड है वो बताते हैं कि मेरे थॉट्स ब्रेन में जो चल रहे थे, ऐसे विचार जब चल रहे थे, तो उन्होंने लिफाफा जो उन्होंने एनवेलप बनाया था और उसके साथ में जो चेक था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ऐसे तो प्रॉफिट जो होता है ये तो आखिरकार जैसे गेम के अंदर उन्होंने सोचा कि बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, हार या जीत जैसे गेम का पार्ट होता है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी तो बिजनेस के लिए एक साधारण सी बात होती है। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड द कस्टमर। खरीदना और बेचना पूरी तरीके से व्यापारी और ग्राहक के बीच में एक सीधा सा मामला होता है। व्यापारी चाहे जितनी अपने प्रोडक्ट के लिए मांग कर सकता है, जितने भी वो ग्राहक से पैसे ऐंठना चाहे वो ऐंठ सकता है ना, और ग्राहक किसी भी प्रकार से उसके लिए भुगतान करने के बाद में
जो शॉपकीपर है किसी भी तरीके का आभारी नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैंने जो उससे पेंटिंग खरीदी थी, जो मैंने बेची है, तो वो मेरी कला थी, मैंने मेरी कला से है जो प्रॉफिट कमाया है, तो मैं उसके ऊपर किसी तरीके से एक ऑब्लिगेशन मेरे पे नहीं है। तो आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर। और इस तरीके से ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंद हो जाता है। तो हमें ये समझ में आता है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से इंसान के ऊपर जो है प्रॉफिट जो है सेल्फ का, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। वो अपनी भावनाओं से और मोरली जो है डाउन हो जाता है, क्योंकि लास्ट में वो यही सोचता है कि व्यापार के अंदर प्यार, दया, सहानुभूति, ये सब कुछ मैटर नहीं रखती है। व्यापार जो होता है, बिजनेस, वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लिए ही होता है, उसके अंदर इस तरीके की इमोशंस की कोई स्पेस नहीं होती है। आई होप बहुत अच्छे से ये चैप्टर मैंने ईवी लुकास के द्वारा रिटर्न आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमें यही समझ में आया कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो पैसे के बारे में सोचता है, किस प्रकार अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, और वो पेंटिंग के इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है वो आपने बहुत अच्छे से समझी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई रचना अग्रवाल, थैंक यू ऑल।